بلا تاخیر ہم اس کو آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کو، تاکہ ہم اپنے سلیبس کو ختم کر سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ نے آخر میں آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ وہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد ہے جی؟ ہاں جی، کلاس آیت یاد ہے آپ کو؟ جی سر۔ یہ آیت آپ نے لاسٹ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا مدد طلب کیا کرو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے۔ یعنی کہ آدمی جب بھی اس کو مصیبت و پریشانی آئے تو فوراً صبر کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اور صبر کرنے کا طریقہ جو نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ کو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ استرجاع۔ استرجاع کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو اس کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یا اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر عطا فرما، میں صبر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو میری گم ہو گئی ہے یا کھو گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ جس طرح کا بھی ہے۔ دوسری شاید کا مستفاد یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے۔ ہاں جی، یاد آ گئی جی آیت؟ جی سر۔ باقی کلاس یاد کرے آئے تھے، آخری لیکچر یاد ہے آپ کو؟ بھول بھال گیا؟ جی سر یاد ہے، لاسٹ پہ آپ نے بتایا تھا کہ 3 چیزوں پر صبر کرنا: ہاں جی، بالکل یاد آ گیا آپ کو، بالکل آپ نے یاد، الصبر اطاعت والطاعت۔ کی درد کا مطلب اور ہاں تو مصیبت کے بس وقت۔ اب اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لمن یقتلوا، جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اموات، اللہ کی راہ میں مردہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، یعنی کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ اب یہ سمجھنے والی آیت ہے ایک لحاظ سے۔ یہ جو لفظ ہے آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ لفظ ہے یقتلوا۔ قاتل یقتلوا سے فعل مضارع کا مجہول صیغہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی آدمی قتل ہوتا ہے تو کیا وہ دنیاوی طور پہ زندہ ہوتا ہے؟ جی سر بتائیں جی۔ نہیں سر، دنیاوی طور پہ وہ زندہ نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی آپ نے صحیح بات کی ہے، تو اس لیے اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا ہے کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ قتل ہو گیا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے جب آدمی قتل ہو جائے تو ایک خاص وقت کے بعد، اگر وہ شادی شدہ تھا تو پہلا یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ کیا اس کی بیوہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے عدت پوری ہو جانے کے بعد؟ جی جی سر۔ پہلے میں چیک کر لوں، اپنا شعیب صاحب ہیں موجود؟ شعیب صاحب آواز نہیں آ رہی ان کی۔ مریم کیسر موجود ہیں؟ جی سر، میں ابھی جوائن کیا میں نے۔ نجیحہ موجود ہیں؟ جی شعیب صاحب موجود ہیں؟ اچھا، نور فاطمہ؟ جی سر۔ اچھا، اسماء حسین؟ جی سر، موجود ہوں۔ اچھا، تو موجودگی کا احساس بھی دلوائیں سارے لوگ۔ اور یہ شعیب صاحب موجود ہیں؟ جی شعیب صاحب لگتا ہے روحانی طور پہ موجود ہیں، جسمانی طور پہ موجود نہیں ہے، بہرحال۔ اچھا، اب یہ سوال سمجھنے والا ہے نا جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں شہیدوں کے بارے میں نا بڑے عجیب عجیب نظریات ہیں، مردوں کے بارے میں بڑے نظریات ہیں۔ پہلی بات یہ کلیئر کر لیں کہ جو آدمی قتل کر دیا جائے اس کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی سر، جائز ہے۔ اچھا، کیا اس کی پراپرٹی تقسیم ہوگی؟ ہوگی سر۔
प्रॉपर्टी तकसीम होगी, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर अल्लाह ताला का, पहले हमने ये समझना है लफ्ज को कि वो कत्ल कर दिया गया है, ये तो कन्फर्म है। इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी जो अब है ना वो दुनियावी नहीं है। ये क्लियर होगी जी बात आपको, वो दुनियावी जिंदगी नहीं गुजार रहा, क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, नहीं गुजार रहा हूँ। हाँ, और इसकी दूसरी दलील ये है कि अगर कोई आदमी गुमशुदा लापता हो, याद रखिए गुमशुदा लापता हो, 6 महीने के लिए लापता हो जाए, तो उसकी जो बीवी है वो शादी नहीं करती, तो उसका मियाँ जो है वो मरा नहीं है बल्कि लापता हुआ है। एग्री जी? जी क्लास? यस सर। जी। अच्छा, और उसकी वजह ये है कि कत्ल हुआ, ये फौत होगा, फिर ही उसकी बात दूसरी होगी ना। तो इसका मतलब है यहाँ सारे स्टूडेंट पहले ये समझ लें कि यहाँ पर पहले अल्लाह ने ये फरमा दिया है कि वो जो कत्ल कर दिया गया है, और जब कत्ल का लफ्ज अल्लाह ने बोला इसका मतलब है कि यहाँ अल्लाह ताला ने पहले ये साबित कर दिया है कि वो आदमी जो अल्लाह की राह में दुनिया से रुखसत हुआ है, कत्ल तो वो कर दिया गया है, लेकिन तुमने उनको मुर्दा नहीं कहना। ये है असल मसला, कि आपने उसको मुर्दा नहीं कहना। और बल अहियाउन, बल्कि वो जिंदा है। अब ये समझने वाली बात है, बल अहियाउन, बल्कि वो जिंदा है। और ये आज का टुकड़ा पड़ा है ना, वला किल्ला तशऊरून, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। अच्छा, अब यहाँ हमने शऊर पे थोड़ी सी बहस करनी है कि कई चीजों का शऊर आपको नहीं है और आप उसके बारे में ना झगड़ा करते हैं, ना उसके बारे में आपने कभी कुरेदने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर आपको यकीनन अपने जिंदगी के पहले 6 माह, 1 माह, 1 साल का कोई शऊर है आपके ज़हन में किसी के? तो बताइए जी। नो सर, बिल्कुल नहीं है। माँ के पेट में हम रहे हैं 9 माह, उसका कोई शऊर हो ज़हन में? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। एग्जैक्ट बात है कि बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद आज हम ये बात को तस्लीम करते हैं कि अकल की बुनियाद पर, साइंस की बुनियाद पर, नकल की बुनियाद पर, कुरान और सुन्नत में आता है कि हमें अगर शऊर नहीं है तो इसका ये नहीं मतलब है कि वो जिंदगी की नफी हो गई है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये शुहदा की असल में शान बयान की है कि क्योंकि उसने अपनी जान को अल्लाह ताला के लिए वक्फ करके अल्लाह ताला की राह में उसको दे दिया है, तो इसका मतलब है उसका एक मुकाम अल्लाह ने बयान कर दिया है, उसको एक पोजीशन दे दी है कि तुमने उसको मुर्दा नहीं कहना। अब यहाँ लफ्ज समझे, बल अहियाउन, बल्कि वो जिंदा है। अब इसका लफ्ज हम इससे महसूस करेंगे युक्तल से, कि युक्तल से वह साबित हो रहा है कि वो कत्ल हो चुका है। अल्लाह ताला फरमाता है बल्कि वो जिंदा है, मगर कैसे जिंदा है? तुम उसका शऊर नहीं रखते, तुम उसका शऊर नहीं रखते। अच्छा, अब आप इसमें समझने वाली बात ये है कि आपको जब पता हो ना, जिस चीज का आपको शऊर हो, साफ ज़ाहिर है कि आपका उसके बारे में रिएक्शन कुछ और होता है। मिसाल के तौर पर अगर कमरे में कोई आदमी बैठा हुआ है और आपको मालूम है आप भी उसी कमरे में हैं और आपको ये शऊर है कि वो मुझे देख रहा है और वो जाग रहा है, तो आपकी हरकत और सकनात में और तरह की चीजें होती हैं बनिस्बत ये है कि जब आपको पता हो कि वो बेहोश है या सोया हुआ है या वो मर चुका है। अब ये डिफरेंस है। अल्लाह ताला फरमाता है भला हियाउन, जिंदा तो वो है लेकिन तुम उसका शोर नहीं रखते। इसका मतलब वाज़ेह हो गया कि वो जिंदगी दुनियावी नहीं। हाँ जी, एग्री जी, वो जिंदगी दुनियावी नहीं है। क्लियर है जी? यस सर। अब इसको हम जरा और लिहाज से जरा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई मर्द या औरत फौत होती है, ये होती है, तो साफ है कि आपको पता है कि सबसे पहला काम है उसको गुस्ल देना, उसको गुस्ल दिया जाता है। और गुस्ल देने के लिए उसको अनड्रेस किया जाता है, उसका लिबास उतारा जाता है। और आपको पता है लिबास उतारने का अमल खुद ये जाहिर करता है कि वो आदमी फौत हो चुका है। जिंदा होता तो कभी उसका लिबास ना उतारा जाता। एग्री जी? जी। जी सर। तो यहाँ बाज लोग ना यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हेर फेर करते हैं कि नहीं जी वो जिंदा है। अब जिंदा का मतलब क्या है कि आप उनको मदद के लिए पुकार सकते हैं और ये कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये आयत का टुकड़ा भी इसके साथ ही मौजूद है, वला किल्ला तशऊरून, तुम उसका शऊर नहीं रखते। अल्लाह फरमाता है शऊर नहीं रखते। और बाद लोग अगर ये कह दें नहीं हम शऊर रखते हैं, वो जिंदा है, वो ऐसे ही मदद करते हैं जिस तरह पहले मदद करते थे, या ऐसे ही मदद करते हैं कि बस ये कर देते हैं वो कर देते हैं, तो ये शायद के खिलाफ है इस टुकड़े के, वला किल्ला तशऊर, हमें कोई शऊर नहीं है। अगर हम ये शऊर नहीं रखते तो हमें किस तरह अंदाजा होगा कि वो लोग किस तरह के जिंदा है। जहां तक बरज़ख की जिंदगी है, बरज़ख का मतलब क्या होता है जी, किसी को पता हो?
फिर आर्मी बरसस मरने के बाद फिर उन्हें वहां पे चले इकट्ठी होती है। हाँ, बरज़ख का मतलब जहाँ होता है रूह है। पर्दा। जी, पर्दा है। मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, जैसे कोई आदमी दुनिया से रुखसत होता है तो हमारे और उसके दरमियान एक पर्दा हो जाता है। वो पर्दा उसको कहते हैं आलम बरज़ख, और उस पर्दे के अहकामात कुछ और है। वो पर्दे में जाते ही, यानी कि वो जो बरज़ख का पर्दा है उसमें जाते ही अहकामात बदल जाते हैं। पीछे तो उसकी बीवी कहीं और शादी कर लेती है और उसकी वरासत वो तकसीम हो जाती है, उसकी चीजें लोगों में डिवाइड हो जाती हैं। जिनका वो खुद मालिक था वो मालिक नहीं रहा। अब बरज़खी जिंदगी हर एक को हासिल है। ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 11 में, आयत नंबर 46 में, सूरह नूह की आयत नंबर 25 में, और सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 27 में, ये सारा आप इसको पढ़ सकते हैं। सूरह मोमिन के अंदर भी है, सूरह नूह के अंदर भी है, सूरह इब्राहिम के अंदर भी है। अब बरज़ख की जिंदगी हर एक को हासिल है, वो काफिर को भी हासिल है और वो मोमिन को भी हासिल है, लेकिन हम उसका शऊर नहीं रखते, हमें उसका बिल्कुल इल्म नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद ने नफी कर दी है। अब यहाँ पर शहीदों की इज्जत करने के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उन्हें खास तौर पर ये लफ्ज बोला है बाला अहया, उनके वो जिंदा हैं, ताकि ये कोई ये ना कहे कि फलाना कत्ल हो गया और उससे जिंदगी का ऐशो आराम छिन गया। बल्कि वो कत्ल नहीं हुआ, बेसिकली वो अल्लाह की राह में उसने अपनी जान को कुर्बान कर दी है। उस आयत पे अमल करते हुए अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून, सूरह तौबा में है। इसी तरह अल्लाह वहदहू ला शरीक सूरह वो जो है अपना, जो अल्लाह ताला वहां फरमाता है कि हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ये सूरह सफ में है। हल तुन हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, 28वें पारे में अल्लाह फरमाता है, तुम्हें एक तिजारत ना बता दूं, अपना माल और अपनी जान मेरे हवाले कर दो, मैं जन्नत तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, गिव एंड टेक, मुझे ये दे दो मैं तुम्हें ये दे दूं। तो ये है जी शहीदों की जिंदगी के शहीद जिंदा हैं कैसे, हमें उसका शऊर नहीं है। और वो जो बरज़ख की जिंदगी है वो हर एक को हासिल है। फर्क ये है कि काफिर को अजाब हो रहा है और मोमिन जो है वो राहत में है। ये है जी इसका असल मतलब। वाज़ेह होगी जी बात। जी जी क्लास। सर। आगे फरमाया वाला नबलुवन्नकुम, वाओ और लाम और ये नून आपको नजर आ रहा है शद वाला, लाम और नून की वजह से यकीनन, यकीनन, जरूर भी जरूर, बिला शक व शुबा, शक ही कोई नहीं, इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल। और मैं यकीनन, यकीनन, हर सूरत, अब ये सब इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको तर्जमे की गहराई का अंदाजा हो जाए। हर सूरत, लाजिमन, कंपल्सरी, यकीनन, यकीनन, विदाउट एनी डाउट, हम तुम्हें आजमाएंगे। कितना फायदा हुआ ग्रामर पढ़ने का, कितना फायदा हुआ तर्जमा पढ़ने का। ये फायदा हुआ कि जब हम दुनिया के इम्तिहान को देते हुए परेशान हों तो हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा पर्चा जरूर होना है, लाजमी होना है। ये पर्चे लाजमी होते हैं, ये एमबीबीएस वालों को भी होते हैं, इंजीनियरिंग वालों को भी होते हैं, ये साइकोलॉजी वालों को भी होते हैं। तो जिंदगी का एक इम्तिहान है। अल तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कहीं अल्लाह ने इसको बलान हसनन कहा है, कहीं अल्लाह ताला ने इसको कहा है कि वाला नबलुवन्नकुम। फिर मैं सूरह कहा में लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, यानी कि हमने तुम्हें जिंदगी इसलिए दी है कि हम तुम्हारी आजमाइश करें। कभी आपने मैट्रिक ऐसे पेपर दिए बीए वगैरह के, कभी किसी ने बताए? जी सर दिए हैं। कभी ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर खाली हो, कोई सवाल ही ना हो उसके अंदर? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर वो जो जज कर रहे हैं तो जज करने के लिए कोई तो वो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करेंगे ना, कि जिसकी बेसिस पे वो हमें जज कर पाएंगे और या हमें आप नंबर दे पाएंगे। और आप जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो कहते हैं जी पेपर होना चाहिए, फिर ही पता चलेगा ना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और ये डल है। क्या ख्याल है जी? सर उनकी, हाँ बिल्कुल सर, उनकी जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बेसिस पर ही पता चल सकेगा कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और कौन किस लेवल पे लाई आपको करता है। पता है, बिल्कुल पेपर का इंतजार करता है इंटेलिजेंट बंदा जिसकी तैयारी होगा, तो लो पेपर जी मेरा, पेपर से पता चलता है ना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें वजाहत फरमा दी है कि हमने लाजमी तुम्हारा ये पर्चा लेना है, शाकी कोई नहीं है, लाजमी तुम्हारा पर्चा लेना है। और कौन सा? बिशई मिनल खौफी, खौफ, वल जूई, भूख, वनक्सी मिनल अमवाली, माल में कमी करके, वल अनफुसी, जानों में कमी करके, व समराती, और फलों में कमी करके। बाद लोग समरात का तर्जमा ये भी करते हैं नतीजों में। नतीजे से क्या मुराद है कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ, नतीजा कुछ और निकल आता है।
मेरे ज़हन में था कि इससे मुझे फायदा होगा, वो नुकसान हो गया। मेरे ज़हन में ये था कि नुकसान होगा, वो फायदा हो गया। मेरे ज़हन में ये था मकान लूंगा तो सुकून में आ जाऊंगा, वो बेसुकूनी बन गई। मेरे ज़हन में ये था कि ये, यानी कि हम सोचते कुछ है, नतीजा कुछ और निकलता है। ये समरा का मतलब ये भी है, तो ये भी इसमें शामिल है। अब ये अल्लाह ताला ने आपको क्वेश्चन 1 बता दिए खौफ, क्वेश्चन नंबर 2 भूख, क्वेश्चन नंबर 3 मालों में कमी, क्वेश्चन नंबर 4 जानों में, और क्वेश्चन नंबर 5 नतीजे या फलों और सब्जियों में। अब बताइए, ये पर्चे अल्लाह ताला ने आपसे लेने ही लेने हैं। कभी आप खौफजदा हो जाएंगे, कभी आपको भूख आ लेगी, कभी आपके माल में कमी हो जाएगी, कभी आपका कोई अजीज प्यारा फौत हो जाएगा, या वो बीमार पड़ जाएगा, या और कभी ऐसा होगा कि आपको फल और सब्जियां नहीं मिलेंगे, या कभी ऐसा होगा कि आपकी मर्जी का नतीजा नहीं आएगा। बताइए, ऐसा होता है? जी, जी सर, होता है ये तो, ये सभी के होता साथ रहता है। देखने के लिए ये मिलता होता रहता है, है। हर जी सर। आदमी खौफजदा भी हो जाता है। कभी बाज बाज का पैसे नहीं होते, बाज का घर का बजट डिस्टर्ब हो जाता है, बाज का हम वो खाना नहीं खाते जो हम कभी खाया करते थे, बाज बात ऐसे हो गया, बाज बात वैसे हो गया। इसका मतलब है वलान फुजीबत समरात। कभी ऐसा होता है हमारा मर्जी का नतीजा नहीं निकलता, कभी ऐसा होता है हमारा कोई अजीज साथी फौत हो जाता है। तो ये पहली बात याद रखिए, ये पर्चा होना ही होना है। ठीक है जी। जब आपको पता है कि पर्चा होना ही होना, तो फिर आप ज्यादा परेशान नहीं होते। हम चूंकि इन आयात से अक्सर लोग गाफिल हैं, वो अचानक कोई मसला आता है तो वो कहते हैं ओए होए होए ये क्या बन गया। अब मसला है कि पेपर तो होना ही होना था, हम खाली पेपर की उम्मीद में बैठे हुए हैं, और पेपर में क्वेश्चन जो आने थे वो अल्लाह ने यहाँ पर बता दी। आगे फरमाया वो बशीर साबिरीन, बशारत दे दीजिए, बशारत दे दीजिए। बशरा युबशिरु, ये बा शीन राम से है, और इसका असल मतलब होता है जिल्द, स्किन। आपको पता है जब आपको खुशखबरी मिलती है या आपका खौफजदा होता है, तो आपको साइंटिफिकली पता है कि आपके जिस्म के अंदर जो रोंगटे हैं, जो आपकी स्किन के ऊपर होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, और आपको ना अजियत या तकलीफ का एहसास होता है। एग्री जी? यस सर। ये जो आपके जिस्म पे रोंगटे जिनको कहा जाता है ना, पोर जो ऊपर को उठ जाते हैं, बार बार आप देखा होगा कि वो छोटे छोटे पोर जिनको जिनसे बाल बरामद होते हैं, वो बाहर खड़े हो जाते हैं, वो खौफ की वजह से या किसी और वजह से। ये जानवरों के अंदर भी ये रिफ्लेक्स एक्शन मौजूद है कि जानवर जब अपने से बड़े जानवर को देखता है तो उसके भी बाल खौफ से ना रोंगटे उसके खड़े हो जाते हैं। तो बशीर, जब खुशखबरी मिलती है ना सब्र करने वालों को, तो सब्र करने वाला खुश हो जाता है कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे रहा है, मुझे खुशखबरी दे रहा है, और नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहा है कि आप इनको खुशखबरी देनी कितनी बड़ी बात है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी मुआज बिन जबल को रजी अल्लाह तआला भेजा यमन की तरफ, फरमाया कि बशीरा वाला तो नफिरा, कि तुमने उनको बशारत देनी है, उनको ना नफरत नहीं दिलानी, यानी कि दीन के अंदर नफरत नहीं दिलानी कि ये है वो है, अच्छे तरीके के साथ उनको दीन की तरफ लेकर आना है। अब साबिर कौन है? अल्लाह ने तारीफ खुद ही कर दी है। अल्लाह जीना इज़ा असाबत हम मुसीबा, जब भी उन्हें कोई मुसीबत आती है, जब भी उन्हें कोई मुसीबत आती है, मुसीबत उस चीज को कहा जाता है जिससे आदमी को अजियत पहुंचे। इज़ा असाब, आपको पता है जो मुसीबत है वो जहनी भी हो सकती है और जिस्मानी भी हो सकती है, दिमागी भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। ठीक है जी। वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है और मटेरियल भी हो सकती है। ऐसा है कि नहीं जी? यस सर, ऐसा है। बाज़ औक़ात आदमी के पास आपका आपका जिस्म सलामत होता है, लेकिन आप ज़हनी तौर पर टेंशन में होते हैं। बाज़ औक़ात आपको ज़हनी टेंशन तो नहीं होती, लेकिन आपके जिस्म के अंदर कोई जख्म ऐसा हो जाता है जिससे आपको दर्द हो रही होती है। तो मुसीबत दरअसल असाबा युसीबु, हर वो चीज़ जिससे इंसान को अजियत पहुंचती है। और वो अब क्या कहता है, कौलो, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। हम खुद थोड़े, हम तो अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला की मलकियत है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। अला लहुल खल्क वल अम्र, उसने हमें पैदा किया, उसने हमें खलक फसव्वा, उसने हमें पैदा करने के बाद तस्विया किया, हमारी डिजाइनिंग की। जिस तरह आप मकान की आर्किटेक्ट के पास जाके उससे बकायदा उसकी एक ना कंपोजिशन करवाते हैं, उसकी बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करवाते हैं। अल्लाह ताला ने आपके कान लगाए, आंखें लगाई, सारा कुछ। अलम नजअल लहू अयनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वजअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफिदा। फिर फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैय्यन। सूरह मोमिनून के पहले रुकू में आप पढ़ सकते हैं कि अलगा बनाया, फिर मुज़गा बनाया, फिर हमने फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया, फिर तुम्हें खूबसूरत बना दिया। खाला का वसव्वा सुम्मा हदा, फिर हमने उसको हदायत भी दे दी। तो फरमाया कि ये वो लोग हैं, कहते हैं हम तो अल्लाह की मलकियत है, हमारा अपना क्या है।
बाबा के यहाँ से कौन लाया? जिसने पाया वहीं से पाया। आपकी खूबसूरती, आपका हुस्न, आपकी दौलत, आपका माल, ये सारा असल में किसका अता करता है? बताएं जी। सर अल्लाह ताला का अता करता है। अल्लाह ताला का अता करता है। आप अगर किसी बड़ी पोस्ट में बैठे हुए, इसलिए कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमद एक खास कलमा है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है कि तारीफ किसी डायरेक्टली आप जिधर से भी जाएंगे तो आप ये कहेंगे ये मेरे पास अल्लाह की तरफ से ना होती तो मैं ये इतनी तनहा ना ले रहा होता, ये मुझे ना मिल रहा होता। आपका कोई भी चीज जो आपके अंदर पॉजिटिव है वो सारी अल्लाह की तरफ से है। तो किस तरह हो सकता है कि अल्लाह ताला की हम मलकियत में हो, उसके ममलूक हो, उसकी इबादत करने वाले, और हम अपनी मर्जी शुरू कर दें कि जी मैं तो अपनी मर्जी करूंगा अपने जिस्म पर भी और अपने इधर भी ऊपर? नहीं, इन्ना लिल्लाही, हम तो अल्लाह ताला के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और साथ अपने आप को याद करवाते हैं कि बेशक हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं। इसी से वो कलमा निकलता है इस्तिरजा। ये इसको कहते हैं कलमा इस्तिरजा। हमजा सीन ते रा जीम अलिफ जा और ऐन। इस्तिरजा का मतलब होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ने का हुक्म दिया था उम्मे सलमा को, उन्होंने पढ़ा ये कलमा। जब उनका खामन फौत हुआ अबू सलमा, तो अल्लाह ताला ने बेहतर चीज अता कर दी। क्या अता कर दी? कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की बीवी बना दिया उम्मे सलमा को, हालांकि वो बेवा थी। तो यहाँ पर वजाहत हो जाती है आगे आयत पढ़ने की, उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमा, कि इन पर अल्लाह ताला की तरफ से अनायात हैं और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। अल्लाह की तरफ से मेहरबानियां भी हैं और रहमत भी है। और वह उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि 3 पैकेज आपको मिल रहे हैं। जब आप सब्र करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, और आपको ये तभी पढ़ना याद आएगा जब आपको पता होगा मेरा पर्चा हो रहा है। तो ये वो लोग हैं, पहली बात इन पे अल्लाह की तरफ से रहमतें हैं, अनायात हैं। इसका तर्जमा सलावात का मेहरबानी आप कर सकते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, फिर रहमत है और फिर हदायत है। अब ये तीनों चीजें आपको चाहिए या नहीं? सर सबसे ज्यादा इन्हीं की जरूरत है दुनिया में भी और आखिरत में भी। कि आपको तीनों चीजें लाजमी चाहिए। अल्लाह की मेहरबानी भी चाहिए, अल्लाह की रहमत भी चाहिए, और अल्लाह ताला की तरफ से ये भी चाहिए कि आप हदायत याफ्ता हो। तीनों चीजें आपको चाहिए। जिस तरह आप सफर करते हैं ना हवाई जहाज में, तो हमारे यहाँ जो पैसेंजर्स होते हैं जिस तरह के सीधे साधे, तो वो सफर करते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं जी सफर भी करेंगे और एसी भी लगा हुआ होगा, और फिर एयर होस्टेस भी आएगी, और फिर वो खाना भी देगी, फिर हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। ये सारी उम्मीद और तवक्को रख के वो जहाज में बैठते हैं। तो यहाँ पर जब आप कलमा पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दिल से सब्र करते हैं, ये नहीं कि जजा फजा कर रहे हैं, सब्र करते हैं आप कि अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर है और मैं अल्लाह की तरफ वापस चले जाना है, मैंने कौन सा यहाँ हमेशा रहना है, मैंने वैसे भी चले जाना है। इन पर 3 रहमतें नाजिल होती है, अल्लाह की मेहरबानी, उसकी रहमत, और तीसरे नंबर पर उलाइका हुमुल मुहतदून, अल्लाह ने सर्टिफिकेट दी है कि यही लोग हदायत याफ्ता है। कौन सा हदायत याफ्ता है? हदायत याफ्ता वो है कि जिनके बारे में आप खुद दुआ पढ़ते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो सावधान पढ़ने से तो नहीं आप बन जाते हदायत याफ्ता, बल्कि आपको पूरा कोर्स करना पड़ता है। तो कोर्स क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से हमें बता दिया गया है कि जो पर्चा आपका हो, परेशानी आए, मुसीबत आए, हर वो चीज जिससे आपको अजियत पहुंचे, तो ये कलमा पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और साथ ये भी पढ़े कि अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, या अल्लाह मुझे इस मुसीबत का अजर अता फरमा, वख्लुफ ली खैरम मिनहा, और मुझे इससे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा, क्योंकि हर चीज का नेमुल बदल अल्लाह के पास मौजूद है। और बाद का नेमुल बदल ऐसा होता है कि वो पहली से ज्यादा बेहतर होता है। आपको पहले एक जॉब मिलती है, वो खत्म होती है, तो अल्लाह ताला आपको अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी और बेहतर जॉब अता फरमा देता है, बेहतर चीज आपको अता फरमा देता है। हाँ जी, यकीन है इस बात पर जी? सर सर इस पे तो बहुत ज्यादा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि अल्लाह ताला खुद ही फिर वो चीज दिखा देते हैं कि अल्लाह पे यकीन और मजीद बढ़ जाता है। जी जी, बेहतर। हाँ जी। तो कुछ फरमाया, जगह पे इस दुआ का लिखा हुआ है वखलिफली, तो वखलुफली सही हाँ है? जी, ये असल में बाब का फर्क है। खालफा यखलुफू से भी आता है तो फिर वखलुफ पढ़ेंगे, और अखलफा से आए तो फिर वह अखलिफली पढ़ेंगे। दोनों ही माने एक ही है। दोनों का जिस तरह आप इंग्लिश के अंदर नहीं, आप कहते हियर सुनना और लिसन वो भी सुनना, वो थोड़ा सा फर्क है। तो दोनों का माना है कि वखलुफली भी है, वह अखलिफली भी है, दोनों ही दुआएं दुरुस्त हैं। होगी जी वजाहत?
جی ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, ग्रामर में ना 6 बाब हैं सुलासी मुजर्रद के. उसके बाद आप आएगा सुलासी मजीद फी में, उसमें 8 बाब है तकरीबन. उसका पहला बाब है बाब इफाल. तो खालफा यखलुहु वहां पे गुजरता है तो बन जाता है अखलफा युखलिफु. फिर युखलिफु से जब आप फेल अमर बनाएंगे तो बनेगा अखलिफ. उसका हमजा पढ़ा जाता है क्योंकि वो हमजा लाजमी है, यकीनी है, उसमें पढ़ा जाएगा. तो वो क्या पढ़ेगी दुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा. और अगर आप पीछे बाब नासरा से पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे वखलुफ ली खैरन मिनहा. दोनों भी पढ़ सकते हैं आप. आगे अल्लाह फरमाता है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं. अल्लाहु अकबर. तो शायर, यहाँ पे शायर का मतलब क्या होता है? शायर का लफ्ज कुरान में 4 मुकामात पर है. 2 दफा सूरह हज में आया है, 1 दफा सूरह माइदा में आया है ला तुहिल्लु शाइरल्लाहि, और 2 दफा सूरह हज के अंदर आया है वलबुदना जालना लकुम मिन शाइरिल्लाहि. और ये यहाँ पर एक ये आया है यहाँ पर शायर का लफ्ज. तो शायरा कहते हैं ऐसी चीज को जो किसी चीज का खास सिंबल और निशान हो. ठीक है जी. शायरा की जमा है शायर, तो ये गैर मुनसरिफ है. शायरा इसका प्लूरल है शायर, और शायर किसको कहते हैं? किसी निज़ाम की बुनियादी अलामत को जिससे वो पहचाना जाए. मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल फोन है, कटा हुआ सेब, ये किसकी अलामत है जी? कटा हुआ सेब. आईफोन। जी बोले जी, आवाज ही नहीं आई आपकी. फिर आईफोन की. आईफोन की. जहां भी कटा हुआ सेब है ना, इसका मतलब है कि आईफोन वालों का वो जो है ना, एप्पल वालों का आईफोन है. इसी तरह ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर, ये किसका? ये अगर लिखी हो कहीं नजर आए तो ये किसका आइकन है, किस मुल्क का? तो पाकिस्तान का. जी पाकिस्तान का. प्लस का निशान, सलीब का निशान, क्रॉस का निशान, ये किस मजहब की अलामत है? क्रिश्चियन। ईसाइयत की। क्रिश्चियन। हाँ. इसी तरह ये कंगा, कड़ा, ये किसकी अलामत है? कंगा, कड़ा वगैरह, ये कौन सा मजहब है? करपान. सिखिज्म। सिखिज्म. वेरी गुड जी. और ये जो है कैंडल, स्पेशली 8 कोनी कैंडल, ये किसकी अलामत है? यहूदियत की। यहूदियत की. वेरी गुड जी. तो आपको पता है कि आजकल चूंकि हम स्टेट्स में डिवाइड हैं, तो आपको पता है हर स्टेट का एक परचम, उसका फ्लैग होता है, हर स्टेट का एक नेशनल एंथम होता है, हर स्टेट की एक करेंसी होती है, और ये तमाम स्टेट्स की ना एक खास तौर पर इनके शायर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली. ठीक है जी. तो इसी तरह यहाँ अल्लाह ने वजाहत फरमाई है कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं. अब ये सफ़ा मरवा हैं क्या? ये काबे के करीब छोटी सी 2 पहाड़ियां हैं, और इनके दरमियान भागना ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से इसमें शामिल था. यानी कि मुनासिक के अंदर शामिल था कि सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की जाएगी, भागा जाएगा. लेकिन ज़माना जाहिलियत में शिरक करने वालों ने इसके अंदर कई शिरकिया रसूम शामिल कर ली थी. यहाँ तक कि उन्होंने ना सफ़ा और मरवा के मुकाम पर 2 बुत रख दिए थे. मैं नीचे वो तफसीर दिखाता हूँ, शायद यहाँ पर भी मौजूद हो. ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा ख्याल है यहाँ भी मौजूद है, ये देख सकते हैं सफ़ा और मरवा. तो यहाँ पर उनका नाम तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ. जो सफ़ा पे बुत था उसका नाम था असाफ, और जो मरवा पे था उसका नाम था नाइला. तो सफ़ा और मरवा के पास ना उन्होंने ये चीजें रख दी थी, असाफ और नाइला के बुत. तो वो साथ साथ सही भी किया करते थे और साथ इन बुतों को बोसा भी दिया करते थे. तो अनस बिन मालिक, ये जिसके नीचे हदीस भी मौजूद है अनस बिन मालिक वाली, तो अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि इब्तदाई इस्लाम में हम इसे जाहिलियत की रस्म समझते थे. हम समझते थे कि आप ना ये ठीक नहीं है सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना, क्योंकि मुशरिकीन ने इसके अंदर चीजें शामिल कर ली हैं, तो लिहाजा ये शिरकिया चीज है और इसे हमने छोड़ दिया था. लेकिन तब ये अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई. इसका मतलब है कि असल चीज को ले लिया जाएगा और बुरी चीज को छोड़ दिया जाएगा. सफ़ा भी अल्लाह की निशानी है, मरवा भी अल्लाह की निशानी है, तो लिहाजा निशानी के हद तक वो अल्लाह की निशानी है. अब क्या हुआ है कि जो एक्स्ट्रा चीज, गलत चीज है, उसको आप अलहदा कर दें तो बाकी चीजें आपके लिए वैसे ही सही हो जाती है. जिस तरह आप कुर्बानी का गोश्त या वैसे गोश्त करते हैं ना, उसकी आलाइश, उसके अंदर जो गलत चीज है, खराब है, उसको आप अलहदा कर देते हैं. दाल की सफाई करते हो आप, क्या करते हैं जी?
جی جی سر کلاس اس میں سے بتائیں. پتھر کنکر وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال اگر لیتے ہیں. دال میں آپ کو نظر آئے 3 4 پتھر تو ساری دال پھینک دیتے ہیں آپ. نو سر جی کنکر سر. کے نکال لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنیکل بات ہے کہ وہ ہم لے لیتے ہیں باقی وہ پھینک دیتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کی توحید کی نشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ میرے شاعر میں سے ہیں. اور فرمایا کہ ان صفا والمروہ من شعائر فمن حج البیت او اعتمر. تو جو اس گھر کا حج کرے یا اس کا عمرہ کرے, حج اور عمرے میں فرق آپ کو معلوم ہے, فلا جناح علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ طواف کہ وہ اس کے طواف کرے, یعنی کہ اس کے درمیان مطلب بھاگے دوڑے تو اس پہ گناہ نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو گناہ ہے مشرکین کی اس عادت کی وجہ سے, تو نہیں. مشرکین کی عادت میں سے جو صحیح عادت ہے وہ تو لے لی جائے گی کہ صاف ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ پر عمل کر رہے ہیں, جو دین حنیف تھا, صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا دوڑنا یہ شریعت کا حکم تھا, یہ حکم تو مانا جائے گا, یہ گناہ کا کام نہیں ہے, بلکہ گناہ کا کام وہ شرک ہے. تو اسی طرح وہ لات اور منات کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, بعض اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق جوڑتے ہیں. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صحیح کو فرض قرار دیا ہے. اور یہ یہاں سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ صفا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور مروہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے. اور فرمایا ومن تطوع خیرن, جو کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا اپنی مرضی سے. ایک کام ہے جو کمپلسری ہے, وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ایک کام یہ ہے کہ جو آپ اپنی مرضی سے تطوع اس کو کہتے ہیں کہ اپنی شوق سے کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ دے دی 40واں حصہ, جسے 2.5% کہا جاتا ہے, اپنے مال کا 40واں حصہ دینے کے بعد آپ نے کہا نہیں میں تو اور بھی دوں گا, مجھے اللہ نے اور دیا ہوا میں دوں گا, تو یہ تطوع ہے. تو فرمایا ومن تطوع خیرن, جو تطوع کا کام کرے گا, نیکی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, وہ فرض سے آگے چلا جائے گا اور اپنی مرضی سے مزید, اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو وہ تہجد کی نماز بھی شروع کر دے, اگر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو وہ محرم کے روزے یا ذی الحجہ کے روزے یا پورے چاند کے روزے یا جمعرات اور سوموار کے روزے رکھنا بھی شروع کر دے. تو فإن اللہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر قدردان ہے. اب غور کریں کس لفظ پر, شاکر پر. اللہ تعالیٰ قدردان ہے, اللہ تعالیٰ قدر کرے گا. تو بتائیے اللہ تعالیٰ قدردان ہے, اللہ قدر کرے گا, تو اللہ کتنی قدر کرے گا جی؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق قدر کریں گے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کی کتنی قدر کر سکتا ہوں, آپ میری کتنی قدر کر سکتے ہیں؟ خاص حد کے بعد آپ کہیں گے میرے پاس اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے, آپ کے پاس میرے لیے نہیں ہوگی, میرے پاس آپ کے لیے نہیں ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی کوئی لمٹس نہیں ہے. لہذا جب بھی آپ نیکی کا کام کریں تو یقین کریں کہ وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, 5واں پارہ ختم ہوتا ہے اس آیت پر کہ تم شکر گزاری کرو, ایمان لے آؤ, تو اللہ تعالیٰ کو تم کیا پاؤ گے؟ شاکرن. اللہ تعالیٰ وہ قدردان ہے. تم نے اللہ کی ہاتھ دنیا میں مصیبت برداشت کی, تو دنیا میں آدمی بندے کے لیے برداشت کر لے تو وہ بندہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے کر گزرتا ہے. اللہ تو اللہ ہے, اللہ تمہاری قدردانی کرے گا. جو تم نے اللہ کی خاطر چیزیں چھوڑی ہوں گی, اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہو تمہیں وہ کچھ دے گا جس کا تمہیں گمان نہیں ہوگا. یہ سورہ طلاق بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 28ویں پارے میں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. یہ آیات ہمیں یہ بات کا سبق دیتی ہیں کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے. اور علیم, اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ کام کیوں کرتا ہے, اس کو پتا ہے یہ دکھلاوے کا کام ہے, ریاکاری کا کام ہے, یا اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے. پھر فرمایا ان الذین, بے شک وہ لوگ, یکتمون, کتم یکتمون باب نصر سے ہے, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, ما, وہ کچھ چھپاتے کیا چیز ہے, ما, جو انزلنا, ہم نے نازل فرمائی, من البینات, وضاحت میں سے جو واضح چیزیں ہیں, کھلی چیزیں ہیں, والہدیٰ, اور ہدایت والی چیزیں ہیں. صاف ہے اللہ تعالیٰ کا دین واضح ہے, بینات بالکل واضح چیزیں ہیں, ہدیٰ ہدایت بھی واضح ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل, حق آ گیا, باطل جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کی آپ یوں ترتیب بھی تھوڑی سمجھ نہیں کھاتے سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں, آپ نے کبھی
जिंदा चिकन देखा है? चिकन, मुर्गी को जिंदा? हाँ जी। जी सर, देखा है सर। अच्छा, देखा है आपने। और आप ये बता सकते हैं K&N ये क्या चीज है? K&N? सर कंपनी है जो कि चिकन मीट प्रोवाइड करती है, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अच्छा, वो जो आप बिल्कुल आपने ठीक बताया, कराची की कंपनी है K&N, बड़ी मशहूर है, उसके कबाब, उसकी को जब आप बाजार से किसी बड़े स्टोर से उसका वो डब्बा खरीदते हैं जिसके अंदर वो कबाब होते हैं, बताइए वो बनाए तो चिकन से ही होते हैं, तो वो जो चिकन जिंदा है और उसमें क्या फर्क होता है? जी। सर वो जिंदा है, उसमें अभी जान है और उसमें जान नहीं है। और ये उसका बिल्कुल मतलब सर उसकी नहीं, बिल्कुल शेप ही चेंज हो गई है ना, एक हैयत से वो दूसरी हैयत में चली गई है। अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप बैकग्राउंड में यस कर दीजिएगा बाद में। क्या ऐसा है कि वो जिंदा था, फिर उन्होंने उसको ज़िबा किया, उसको साफ किया, पर उतारे, उसकी आलाइशें, उसकी नेगेटिव चीजें, गंदी चीजें निकाली, साफ की, बिल्कुल धो धा के, क्लियर करके, बिल्कुल फ्रेश करके, जब उसमें कोई गंदगी मौजूद ना हुई, फिर उन्होंने बड़े अच्छे मसाले लगाए, बड़े खूबसूरत तरीके से उसको प्रिपेयर किया, तैयार किया और रेडी टू सर्व कर दिया। कि आपने घर जाके सिर्फ क्या करना है, उसको चूल्हे पे रखना है, 2 मिनट के लिए वो गर्म हो जाएगा, यू कैन सर्व योर गेस्ट। एग्री जी? यस सर। ना आपको जिवा करना पड़ा, ना आपको पर उतारने पड़े, ना आपको लाइशें साफ करनी पड़ी, तो आप वहां पे आप नाक पे हाथ रख लेते हैं कि ये क्या, मैं कहाँ आ गया हूँ। आपका दीन इतना वाज़ेह है, इतना रेडी टू सर्व है, बस आपने अमल करना है। अल्लाह ने हर चीज बना के दे दी है। मेरी मिसाल समझ आ गई जी आपको? जी सर बिल्कुल आपका दीन आ रही रेडी थी। टू सर्व है। कुछ नहीं करना आपने, ना पार उतारने, कुछ नहीं करना, रेडी टू सर्व है, बस रखे और तैयार हो जाए। रखें तैयार। जी। जी सर। ये आपका दीन रेडी टू सर्व है। कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ असूल ज़ाब्ते कोई जरूरत नहीं है, हर चीज अल्लाह ताला ने बना दी है। आपका काम है आप एंजॉय करें। अल्लाह ताला ने आपको निकाह के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में, उठने के बारे में, बैठने के बारे में, रेडी टू सर्व हर चीज दे दी है। हमारा अलमिया ये है कि हम एज ए नेशन इस बुरी आदत में मुब्तला हैं कि हम रेडी टू सर्व चीजें, जिस तरह मान और सलवा अल्लाह ने दिया। आपको याद है मान और सलवा जो अल्लाह ने दिया था, तो यहूदी कौम ने उसके बारे में क्या रविश इख्तियार की थी? हाँ पर जी। नाशुक्री करी थी और मजीद जगह फरमाइश करी थी कि हमें ये प्याज और ककड़ी वगैरह चाहिए, और इस चीज से हमारा दिल भर गया है। हाँ जी, वो देखिए दिल भर गया है। अब हमारे यहाँ बाद लोगों का दीन से दिल भरा हुआ है। वो कहते हैं ये क्या, हर रोज नमाजें पढ़नी पड़ती हैं, हर रोज रोजा रख, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। कमाल है जी। अ, हालांकि असल बात ये होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी को देखा जाता है। उन्होंने भी यही कहा था कि मान और सलवा जो घर में आ रहा है वो नहीं चाहिए। अब दुनियावी तौर पे हम टोटली डिफरेंट चल रहे हैं इस वक्त। मैं इसको काफी ऑब्जर्व करता हूँ। दुनियावी तौर पर हम बहुत खुश होते हैं जी, आजकल इन ड्राइव का जमाना है, यूबर का जमाना है, और वो तीसरी एक और है, बाइकिया का जमाना है। मैं घर पे खड़ा होता हूँ, खड़ी होती हूँ, बाइकिया बुला लेती हूँ या बुला लेता हूँ, इन ड्राइव आ जाती है, और क्या ही बात है। बताइए ठीक है ये नहीं? जी, क्लास जी बोले। सर बिल्कुल, बुलाते हैं और बड़ी आसानी भी होती है इससे। हाँ, आसानी, क्या बात है। और जी वो फूड पाना वाले को आवाज दी थी, वो 2 बजे रात को भी खाना लेके आ जाएगा, 3 बजे भी आ जाएगा। अंदाजा लगाइए दुनियावी तौर पे हम इस चीज के ना सिर्फ फाइल और कायल हैं, बल्कि बड़ा खुश भी महसूस करते हैं कि हमें रेडीमेड चीज मिल रही है, रेडी बिल्कुल हमारे डोर स्टेप पर। और तो दीन अगर रेडी मिल जाए तो फिर हमें मुसीबत पड़ जाती है अक्सर लोगों को। अल्लाह फरमाता है कि हमने वजाहत, हदायत मिन बाद मा बय्यना लिन्नास फिल किताब, कि अल्लाह ताला ने लोगों के लिए उसको वजाहत से बयान कर दिया, बिल्कुल फ्रेश करके, अलहदा करके। शिरक को बिदत से अलहदा कर दिया, सुन्नत को बिदत से अलहदा कर दिया, शिरक को ईमान से अलहदा कर दिया, हर चीज को खोल खाल के बयान कर दिया है। ये लोग इसके बावजूद दीन की बातों को छुपाते हैं, तो क्या होता है, उलाइका, ये वो लोग हैं, या लानहुमुल्लाह, कि अल्लाह इन पे लानत फरमाता है। अल्लाह इन पे लानत करता है, वह या लानहुमुल्लाइनून, और लानत करने वाले भी इन पर लानत करते हैं। अंदाजा लगाएं यानी कि दीन की बातों को छुपाना। असल में यहाँ पर जो किताब से मुराद है वही किताब है जो यहूदियों में नाजिल हुई,
اور یہودیوں پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے ان باتوں کو چھپایا ہوا تھا جو تورات اور انجیل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبریاں موجود تھیں. تو اس لیے یہاں پر ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور اس آیت کے الفاظ عام ہیں. اگر کوئی مسلمان عالم بھی اس کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی کوئی دین کی بات چھپاتا ہے اور جو اس نے فرقہ بنایا ہوا ہے اس کی بات کو پروجیکٹ کرتا ہے تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے کہ ان لوگوں پہ اللہ لعنت فرماتا ہے. اور لعنت فرمانے والے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر وہ باقی فرشتوں تک بات پہنچتی ہے تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہی بات اس آدمی کے لیے الٹ بیان کی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں تو جبرائیل تو بھی اس سے نفرت رکھ. تو فرشتے بھی اس سے نفرت رکھتے ہیں اور پھر سارے آسمان میں جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہے ساری اس سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتی. اس کا مطلب ہے دین کی بات چھپانا درست نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ٹیکنیکلی بعض اوقات دین کی بات چھپائی جا سکتی ہے. چھپانے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھی نہ بتانا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. چھپانے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھی نہ بتایا جائے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دین کی کوئی خوشخبری چھپانی اس لیے پڑتی ہے کہ اگلا آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو یہ بتایا جائے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ کو لا الہ الا اللہ پر جنت کی بشارت عام لوگوں کو بیان کرنے سے منع کر دیا تھا کہ عام لوگ پہلے ہی عمل نہیں کرتے تو لہٰذا جب وہ یہ بشارت سنے گا تو بالکل عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو دین میں چھپانے کا مطلب ہے کہ وہ بات کسی کو بھی نہ بتانا. جب آدمی کسی کو بتا دے جو اس کو بتانے کا عمل کرنے کا اہل بن جائے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آدمی پہلے ہی بد عمل ہے اور آپ اس کو مزید غفور و رحیم کی طرف لے کر آئیں تو صاف ہے پھر بد عملی اس کی بڑھ جائے گی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اب اگر اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا ہے تو اس سے بچ کیسے سکتا ہے آدمی؟ تو اللہ نے آگے اس کا راستہ بیان کر دیا ہے کہ اس لعنت کے دائرے سے نکلنے کا طریقہ 3 کام کرے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. تو پہلے تو توبہ کرے اس سے جو اس نے بات دین کی چھپائی تھی. واصلحوا، اور اصلاح کر لیں. یعنی کہ توبہ کرے اصلاح کرے. وبینوا، ساگر ہے کہ لوگوں کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے درس دیتا ہے، لوگوں کے سامنے یوٹیوب پر موجود ہے یا یہ فیس بک کے اندر موجود ہے. یہ اتنے آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے فالوورز ہیں بڑے بڑے دیندار لوگوں کے اور بڑے ان کے درس سنے جاتے ہیں. اگر کوئی عالم دین کی بات کو چھپاتا ہے تو اس کا کام بنتا ہے کہ وہ دین کی بات چھپانے کے جرم پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح کرے. اصلاح کرنے کے بعد فوراً اپنے سارے فالوورز کے سامنے بیان کرے کہ اصل بات یہ تھی. تو یہ 3 کام اگر وہ نہیں کرتا تو وہ لعنت سے نہیں نکلتا. واضح ہوگی جی بات؟ سر یہ ریپیٹ کر دیں گے، آواز تھوڑی بیچ میں ڈسٹرب ہو گئی تھی. دیکھیے اگر ایک آدمی کو دین کی بات غلط کرتا ہے، دین کی بات چھپا لیتا ہے یا دین کا مسئلہ غلط بیان کر دیتا ہے تو اس کا کام بنتا ہے کہ وہ اس سے توبہ کرے، اصلاح کرے. اب صاف ظاہر ہے دین کا مسئلہ غلط جو بتا بیٹھا ہے لوگوں کو تو اگر وہ اس پہ عمل کرتے پڑیں گے تو کیا بنے گا؟ تو لہٰذا وہ اوپنلی یہ بھی بتایا کہ اپنے سارے فالوورز کو بتایا کہ میں نے وہ دین کا مسئلہ غلط بتایا تو بھائی اس کو درست کر لیں. وہ بینوا یعنی اس کو وضاحت سے بیان کر دیں. اب وضاحت ہوگی نہیں؟ یس سر ہو گئی، جزاک اللہ. یہ 3 کام کرنے ہیں. توبہ کرے، اصلاح کرے اور پھر لوگوں کو بتائے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ علماء کو فالو کرتے ہیں. خاص طور پر ہمارے یہاں یہ فتنہ بہت زیادہ ہے کہ ہم یوٹیوب پر بغیر تحقیق کے دیکھے بغیر کہ وہ عالم ہے بھی یا نہیں ہم اس کی باتوں سے متاثر ہو کر، اس کے ڈریس سے متاثر ہو کر، اس کے بولنے کے انداز سے متاثر ہو کر، اور جس طرح ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے ڈسپلے کا دور ہے تو ڈسپلے کی وجہ سے ہم نے کئی نقائص کئی نقص نہ ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں اس کا چونکہ کلین آبزرور ہوں تو میں کئی چیزیں آپ کے سامنے شیئر کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں اکثر بس جو بڑی بڑی سروسز ہیں بتائیے اس میں پیسنجرز کو انٹرٹین کرنے کے لیے بس میں کون ہوتا ہے؟ خواتین کو رکھا جاتا ہے، یہ مطلب ان کے ہوسٹس جو. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، جواب دے دیں گے جی؟
जी जी सर। सर कोशिश कर। कोशिश का बड़ा आसान सवाल है। वो जो चाय और वो जो बिस्किट है वो देने हैं, वो मर्द नहीं दे सकता। हाँ जी। सर बहुत आसान काम है, दे सकता है बिल्कुल। देखिए ना, यानी कि एक बस है, बस के अंदर जनाब मुसाफिर सफर कर रहे हो, अक्सर आपको पता है अक्सर मुसाफिर मर्द ही होते हैं, औरतें कम होती हैं अक्सर। अगर कोई मुसाफिर बैठे हुए हैं तो वो जो बोतल है या कोक है, या वो मर्द नहीं दे सकता कि हर सीट पे जाए, "ए लो जी भाजी है ਤੁਹਾਡੀ बोतल है ਤੁਹਾਡੀ है ਤੁਹਾਡੀ"। हमने औरतें क्यों रखी हुई है? जी। वो ज्यादा अच्छी लगती हैं सबको। अब आपको पता है कि हमारा मुआशरे का अलमिया ये है कि हमने ना, वो जो है ना, लोगों का ज़हन, मतलब उसको पलटने के लिए, और अपनी जो बुरी सर्विस है, जो हमारी बुरी सर्विस है, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है लेकिन हमने उसको छुपा लिया एक औरत दिखाकर। वेरी सॉरी टू से कि हमारा एक अलमिया ये बन गया कि हम एक औरत को खड़ा करते थे, वो बेचारी अपनी मजबूरी की वजह से वहां पे खड़ी हो जाती है आकर, वो 10, 15, 20 हज़ार के लिए। और हमारा ज़हन जो है ना, वो फिर उधर उनकी जो नेगेटिव चीजें हैं, जो उस कंपनी की या उस सफर की, वो हम भूल जाते हैं और हम अपनी एंटरटेनमेंट दूसरी शुरू कर देते हैं। ये चीजें जो है ना, ये हमारे मुआशरे में बड़ी आम है। तो लिहाजा अब हमारे यहाँ यूट्यूब का एक बहुत बड़ा तबका है जो पैदा हो चुका है, जिससे 4, 5 चीजें आती हैं, लच्छेदार गुफ्तगू, इंग्लिश जरा बीच में बोल दी, और ये और वो, और जनाब जो उनके मिलियंस फॉलोअर हैं, अब वो जो कहते हैं वो कहते हैं बस यही कुरान और सुन्नत है। फिर लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आदमी के लिए अगर वो गलत मसला बताता है तो उसके लिए फर्ज है, लाजमी है कि वो अपने सारे फॉलोअर्स को वजाहत से कहे कि मैंने ये मसला गलत बताया है और असल मसला ये। और आपको पता है ये काम इजी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है अपनी गलती को तस्लीम करना। क्या ख्याल है जी? क्या वजह है? सर ईगो पे बात आ जाती है ना, कि हम अपनी गलती किस तरह तस्लीम कर सकते हैं। हमारा इतना नाम है तो हम कैसे अपनी गलती को इतने सारे लोगों के सामने तस्लीम। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ आपको पता है मरने की रस्में हैं, वो तीजा रस्म है, 10वां है। अगर एक आलिम इन रस्मों को 40 साल लोगों से करवाता रहा है, 40 साल के बाद वो लोगों से कहे कि मैं तो ये झूठ बोल रहा था, ये रस्में दीन में है ही नहीं, तो बताइए लोग छोड़ेंगे उसको? नहीं सर। तो इसका मतलब है कि हमें इससे ये ना, तीसरी शर्त जरूर ज़हन में रखें, ये बयान हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं किस मुंह से बताऊं? मैं तो 10 साल से 20 साल से उस पर अमल करवा रहा हूँ। मैं किस मुंह से बताऊं कि ये मैं अमल तुमसे गलत करवा रहा था, इसका तो कोई कुरान और सुन्नत में सबूत ही नहीं है। तो फरमाया ये 3 काम करे। इन तीनों कामों की मुश्किल होने की वजह से हमें फिर कहना कर पड़ेगा कि हम दीन में कोई गलत मसला बताएं ही ना, सीधी सी बात है, ताकि हमें ये इस तरफ आना ही ना पड़े। और अगर हमने अल्लाह ना करे बता दिया है तो फिर हमारा उसको वजाहत करना लाजमी है। फरमाया फ़उलाइका का तूबू अलैहिम, तो ये वो लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ। वाना तव्वाबुर रहीम, और मैं तौबा को कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। यानी कि मैं अपने बंदों पे रहम करता हूँ, और मैं तव्वाब हूँ। यानी कि आदमी अगर तौबा करता है, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। और बल्कि ना सिर्फ माफ फरमाता है, बल्कि उसको, उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। सूरह फुरकान में आता है ना, इल्लल्लज़ीना ताबू आमनू, यानी कि मान ले, तौबा कर ले, वामिल अमलन इल्ला मन ताबा व आमन व आमिल अमलन सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। इबादुर रहमान वाली आयत के अंदर ये आयत भी बीच में मौजूद है, आखिरी रुकू में सूरह फुरकान के अंदर 19वें पारे में, कि अल्लाह ताला उसकी नेकियों को, उसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देता है। कितनी बड़ी बात है! दुनिया का कोई कारखाना ऐसा नहीं है जो बुराई को नेकी में तब्दील कर दे, लेकिन ये अल्लाह का फजल, उसकी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला आपकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देता है। अगर आदमी ने 50 साल गुनाह किए हैं तो अल्लाह ताला कादिर है कि उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे, उसकी तौबा के सच्चे होने की वजह से। तो ये है जी आपका आज का सबक। 160 आयत तक